وزیر اعظم عمران خان نے 2 سال سے غریب عوام کے 2344 ارب روپے اپنی حکمت عملی اور کوشش سے بچائے ہیں۔ یہ رقم پاکستان کے 3 سال کی ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ ریکوڈیکس سے 1100 ارب روپے، کارکے کیس سے 240 ارب روپے، جی آئی ڈی سی سے 400 ارب اور آئی پی پی سے 604 ارب روپے۔ پی آئی اے کے پیرس، برطانیہ اور یورپ کے لیے متبادل ذرائع سے پروازیں بحال کر دی گئیں۔ پہلی پرواز 260 مسافروں کو لے کر پاکستان پہنچ گئی۔ مسافروں کو کنٹری مینیجر اور اسٹیشن مینیجر کی جانب سے رخصت کیا گیا۔ پاکستان ایئر لائن کے مطابق یورپ کے لیے فضائی آپریشن کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ، خاتون زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایل او سی پر دانستہ شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے بھی منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فائرنگ کرنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ بلوچستان ایران کے راستے یورپ جانے والے 99 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ 99 افراد کو چھپا کر ایران لے جایا جا رہا تھا۔ حراست میں لیے گئے افراد کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہے۔ پکڑے جانے والے افراد کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ گوجرخان میں حساس اداروں کی خفیہ اطلاعات پر انڈین ایجنٹ کے خلاف کارروائی۔ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کی راکٹ سلیپر سیل کے اہم رکن کے اہل خانہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ خفیہ کارروائی میں پنجاب ایلیٹ فورس، کشمیر پولیس اور راولپنڈی پولیس نے بھی حصہ لیا۔ راکٹ ایجنٹ کے اہل خانہ کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ، نئی قیمت 105 روپے فی کلو ہو گئی۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 60 روپے اور کمرشل سلنڈر 230 روپے مہنگا ہو گیا۔ قیمت میں حالیہ اضافے کی وجہ تافتان بارڈر سے سپلائی کی بندش ہے۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا متعدد شہروں میں احتجاج۔ گیس کے بلوں، میدے اور آٹے کی قیمتوں میں آئے روز اضافے اور نان کی پرانی قیمتیں برقرار رکھنے پر ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ جوہی کے علاقے کاچھو میں 9 روز گزرنے کے باوجود سیلاب کے باعث 200 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ گیسٹرو کے امراض میں اضافہ، متاثرہ علاقہ مکینوں کی حکومت سے امداد کی اپیل۔ اوش شریف میں 2 ٹریفک حادثات میں 17 افراد زخمی۔ قومی شاہراہ پر مسافر کوچ درخت سے ٹکرا گئی، 10 مسافر زخمی ہوئے، جبکہ اوش شریف انٹرچینج کے قریب تیز رفتار کار ٹرائے پھٹنے سے الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 4 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ کہروڑ پکا روڈ دنیا پور کے قریب گاڑی کا ٹائر پھٹنے سے اے پی وی وین الٹ گئی۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ جے این این کی خبر پر ایکشن۔ اوکاڑا میں والدہ پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار۔ حویلی لکھا میں منور نامی شخص نے اپنی ماں کو بیوی کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ جے این این پر خبر نشر ہونے پر ڈی پی او اوکاڑا نے نوٹس لے لیا۔ پاکستان میں کورونا وبا خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اب تک 2,66,301 افراد نے کورونا کو شکست دے دی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 6 اموات ہوئی، جبکہ نئی رپورٹ ہونے والے کیسز میں کمی آ رہی ہے۔
اور موسیقی کے बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। नुसरत फतेह अली खान ने आरिफाना कलाम, गीतों, गजलों और कवालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। मौसीकी की दुनिया में नए अंदाज अपनाने और कवाली को मशरिक से मगरिब तक मकबूल बनाने पर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को कई एजाजात से भी नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN.
जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं, अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्विटर पैगाम। वजीर आजम इमरान खान से 2 साल में अब तक करीब आवाम के 2,344 अरब रुपए अपनी हिकमत अमली और कोशिश से बचाए हैं। मजीद क्या कहना था इस बारे में जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा JNN शहजाद मिर्जा से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। शहजाद मिर्जा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अहम खबर से आपको आगाह करते चले। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्विटर पैगाम। वजीर आजम इमरान खान ने 2 साल में अब तक गरीब आवाम के 2,344 अरब रुपए अपनी हिकमत अमली और कोशिश से बचाए हैं। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्विटर पैगाम। वजीर आजम इमरान खान ने 2 साल में अब तक गरीब आवाम के 2,344 अरब रुपए अपनी हिकमत अमली और कोशिश से बचाए हैं। मजीद क्या कहना था इस बारे में जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा JNN शहजाद मिर्जा से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। तकनीकी खराबी के बायस हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे से नहीं हो पा रहा। अहम खबर से आपको आगाह करते चले। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्विटर पैगाम। वजीर आजम इमरान खान ने 2 साल में अब तक गरीब आवाम के 2,344 अरब रुपए अपनी हिकमत अमली और कोशिश से बचाए हैं। मजीद उनका क्या कहना था जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। PIA की पेरिस, बरतानिया और यूरोप के लिए मुतबादिल जराए से परवाजें बहाल कर दी गई। पहली परवाज 260 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगी। मुसाफिरों को कंट्री मैनेजर और स्टेशन मैनेजर की जानिब से रुख्सत किया गया। PIA की जानिब से पेरिस और बरतानिया के लिए मुतबादिल जराए से परवाजें बहाल कर दी गई हैं। PIA की पहली परवाज 260 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगी। बहाल किए गए ऑपरेशन के बाद पहली परवाज में 18 मुसाफिरों ने एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी जबकि 242 मुसाफिरों ने इकोनॉमी क्लास से सफर किया। परवाज के जरिए 2.4 टन कार्गो भी पाकिस्तान पहुंचाया गया। पेरिस एयरपोर्ट से PIA के कंट्री मैनेजर और स्टेशन मैनेजर ने मुसाफिरों को पाकिस्तान के लिए रवाना किया। पाकिस्तान एयरलाइन के मुताबिक यूरोप के लिए फिजाई ऑपरेशन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। वजारत हवाबाजी, सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA बहाली में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि बैनुल अक़वामी सेफ्टी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात को भी जल्द दूर किया जाएगा।
गैर कानूनी तौर पर ईरान के रास्ते यूरोप जाने वाले 99 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और यूरोप जाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान के जिला खारान में एक चेक पोस्ट पर एक ट्रक को रोका गया जिसमें 99 अफराद को छुपाकर ईरान ले जाया जा रहा था। इन अफराद को ट्रक समेत तहवील में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। पकड़े जाने वाले अफराद को FIA के हवाले कर दिया गया। खारान में रवां हफ्ते गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले लोगों के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे कबल गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 188 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर एक बार फिर बिलाइश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से खातून जख्मी, जबकि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई है। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक खातून जख्मी हो गई। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके खुईरट्टा सेक्टर पर जंगबंदी माहिदे के खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की। भारतीय फौज की जानिब से सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर एक खातून जख्मी हो गई। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज की तरफ से फायरिंग के बाद पाक फौज ने मौसर जवाब दिया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। DGISPR ने बताया कि भारतीय फौज की जानिब से LOC पर मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और जंगबंदी माहिदे के खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर का पोल एक बार फिर खुल गया। चंद रोज कबल होने वाली बारिश से सीलिंग नीचे जा गिरी, जिससे एयरपोर्ट पर सीलिंग की टाइलों का ढेर लग गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर का पोल एक बार फिर खुल गया। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। चंद रोज कबल होने वाली बारिश से सीलिंग नीचे जा गिरी। सीलिंग गिरते ही बारिश का पानी भी लॉन्च में दाखिल हो गया। थाना गुजर खान के इलाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट को बीवी बच्चों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाई खुफिया इतलात पर की गई। भारतीय एजेंसी रॉ के अहम कारिंदे जलाल को कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट की निशानदेही में भी मुलव्विस रहा। मुलजिम की निशानदेही के बाद भारतीय फौज पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट को निशाना बनाती थी। गिरफ्तार कारिंदे के खिलाफ 18 जुलाई को हसास इदारे की आला अफसरान की मदयत में फतेहपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किया गया भारतीय खुफिया एजेंसी का कारिंदा पंजानी कोटली का रहायशी निकला। गिरफ्तार किए गए कारिंदे को मजीद तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी में हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना के बचाव के लिए लाखों के क्लोरीन के थैले जाया और डिसइंफेक्टिंग टनल गैर फाल होने से कौमी खजाने को लाखों का नुकसान पहुंच रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी में क्लोरीन के सैकड़ों थैले बर्बाद, जबकि आवाम पर कोरोना से बचाव के लिए क्लोरीन की जगह पानी का छिड़काव होता रहा। कॉर्पोरेशन सब्जी मंडी और पिरवधाई मुसाफिर खाने में लगाए जाने वाले डिसइंफेक्टिंग टनल में पानी डालकर टरखाया जाता रहा। इसके अलावा सब्जी मंडी में लगाया गया डिसइंफेक्टिंग टनल गायब और अड्डा पिरवधाई और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी में पड़े टनल गुज़िश्ता 2 माह से गैर फाल और खराब पड़े हैं। 4 लाख के खती रकम से खरीदे गए टनल से कोरोना वबा के दौरान आवाम तो फायदा ना उठा सके, अलबत्ता कबाड़िए जरूर फायदा उठाएंगे, जिससे हुकूमत पंजाब की बेहतरीन अवामी काविश के लाखों का टीका लगेगा और बोझ गरीब आवाम को भुगतना पड़ेगा। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी आमिर महमूद कयानी सिंध के दौरे के सिलसिले में लाड़काना गए। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम अकेले नहीं, PTI उनके साथ है। इंसाफ हाउस लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनरल सेक्रेटरी PTI आमिर महमूद कयानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी मेरे आने जाने को भूल जाए और अपनी कारकर्दगी बेहतर करे। शहर से ज्यादा खर्चा पीपल्स पार्टी ने मिजाज पर कर दिया है। पीपल्स पार्टी जिंदा अफराद की जानिब तवज्जो दे तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि किसी हुकूमत के साथ बैठकर बात करना जमहूरियत की निशानी है। सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हमने गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से लूटे जाने वाले 23,000 करोड़ रुपए वापस करवाए हैं। इस मौका पर PTI रहनुमा सैफुल्लाह आबरो ने आमिर महमूद कयानी को सिंधी टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए।
रुक करेंगे सरगोदा, जहां घर के अंदर अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बाद 4 अफराद बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में नवाही इलाका 47 शुमाली में घर में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बाद 4 अफराद झुलस गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए DH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घर में आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी, जबकि रेस्क्यू ने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकामी इंतजामिया की तरफ से जुर्मानों और हुकूमती मुकर्रर करदा रेट पर नान की फरोख्तगी में रुकावट पर खानपुर के नान भाइयों ने हड़ताल कर दी। खानपुर के नान भाइयों ने एहतजाजन हड़ताल करते हुए अपनी दुकानें बंद कर दी और एहतजाजी मुजाहरा भी किया। नान भाइयों का कहना था कि खानपुर में 7 साल कबल मुकामी इंतजामिया ने जो रेट दिए उसी रेट पर अब नान फरोख्त नहीं कर सकते। मैदे का थैला 1400 रुपए से बढ़कर 3300 रुपए का हो गया है। इन एहतजाजी नान भाइयों का कहना था कि मरकजी हुकूमत ने नान 15 रुपए का ऐलान किया, मगर मकामी इंतजामिया अब भी हमें पुराने नरखों पर फरोख्तगी पर मजबूर करती है। जोही के इलाके काछू में सैलाबी सूरत हाल के 9 रोज बाद भी मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके। 200 देहात समेत जोही से वाही पांथी और गोरख हिल जाने वाली राब्ता सड़कें भी बहाल न हो सकी। आज 9 रोज के बाद भी जोही के इलाके काछू में सैलाब के बायस 200 से ज्यादा देहात और जोही से वाही पांथी और गोरख हिल स्टेशन का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। महकमा अनहार और प्रोवेंशनल हाईवे की जानिब से रास्तों की बहाली के लिए सड़कों का काम सुस्त रवि से जारी है। सैलानी ट्रस्ट की जानिब से रोजाना हजारों मुतासरीन में खाना तकसीम किया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। गैस्ट्रो के अमराज में इजाफा हो गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां न होने के खिलाफ तहसील जोही में शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। हुज्जा शाह मुकीम पसंद की शादी का अंजाम, लड़की के वालिदैन ने दामाद के घर में दाखिल होकर पेट्रोल छिड़क कर घर को जलाकर राख कर दिया। इस पर तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा JNN राना सलीम से। जी राना सलीम, क्या तफसीलात है, इस बारे में आगाह कीजिएगा। तकनीकी खराबी के बायस हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे से नहीं हो पा रहा। आम खबर से आपको आगाह करते चलें। हुज्जा शाह मुकीम पसंद की शादी का अंजाम, लड़की के वालिदैन ने दामाद के घर में दाखिल होकर पेट्रोल छिड़क कर घर को जलाकर राख कर दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हुज्जा शाह मुकीम पसंद की शादी का अंजाम, लड़की के वालिदैन पेट्रोल छिड़क कर घर को जलाकर राख कर दिया। हुज्जा शाह मुकीम से आपको खबर दे रहे हैं। हुज्जा शाह मुकीम पसंद की शादी का के वालिदैन ने दामाद के घर में दाखिल होकर पेट्रोल छिड़क कर घर को जलाकर राख कर दिया। हुज्जा शाह मुकीम पसंद की शादी का अंजाम, लड़की के वालिदैन ने दामाद के घर में दाखिल होकर पेट्रोल छिड़क कर घर को जलाकर राख कर दिया। जी आगे। इस पर तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया नुमाइंदा JNN राना सलीम से। जी राना सलीम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हुज्जा शाह मुकीम के नवाही गांव चार कलासा के रहायशी मेहनत काश मोहम्मद यूसुफ के बेटे उमर दराज के साथ 14 साल लड़की सईदा असलम ने घर से भागकर शादी पसंद की शादी कर ली और नकाहनामा मुकामी पुलिस को भिजवा दिया, जिसके रंज में आकर मुलजमान असलम वगैरह अपने साथियों के हमरा गैरत के नाम पर मुखालफिन के घर में दाखिल होकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घर में पड़ा लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसार हो गया, जिसमें 2 तोला तलाई जेवरात और 1.5 लाख रुपए नकदी रकम के नोट भी आग लगने से जल गए। मुलजमान दहशत फैलाते हुए हवाई फायरिंग करते रहे। मुलजमान ने डंडों सोटों से हमला आवर होकर खतून समेत 80 साल बुजुर्ग को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। जी अच्छा राना सलीम, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। जी अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो 80 साल बुजुर्ग को उन्होंने तशद्दुद और का निशाना बनाया और जख्मी किया, उसकी हालत अभी तक तशवीशनाक है। जी और ये भी बताइएगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस हवाले से। पुलिस ने मकामी पुलिस जो है वो मौका पर पहुंच गई। जो DPO ओकारा है उमर सईद मलिक साहब की हदायत पर उन्होंने वहां FIR दे दी। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
सादकाबाद में दुश्मनी की वजह से नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर जानवरों के चारा में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से 6 भैंसें मौका पर हलाक हो गई। 8 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मालिक ने मीडिया को बताया कि मुखालफीन ने बेजुबान जानवरों के चारा में जहर मिलाकर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। 15 पर इतला दे दी गई है। हलाक होने वाले जानवरों की मालियत लाखों रुपए की है। दूसरी जानिब थाना अहमदपुर में पुलिस ने मौकफ देते हुए कहा कि मुलजिमान की तलाश जारी है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समुंदरी तांदलियानवाला में सर्कुलर की हदूद में 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं के घर में दाखिल होकर लूटमार, मुज़ाहमत पर फायरिंग और तेज धार आले के वार करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। तांदलियानवाला थाना सिटी की हदूद में 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया और डाकू मोटरसाइकिल लेकर मौका से फरार हो गए। मकतूल 3 बेटियों का बाप था। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलियानवाला मुंतकिल कर दी। एसपी सर्कुलर राव अशरफ का कहना था कि पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शेखोपुरा से खबर शामिल करेंगे। नशा आवर चीज खाने से नौजवान लड़का और लड़की बेहोश हो गए। जनाब पार्क जहाज चौक में नौजवान लड़का और लड़की बेहोशी की हालत में मिले। रेस्क्यू 1122 शेखोपुरा ने बेहोश मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखोपुरा मुंतकिल कर दिया। दोनों बेहोश मरीज जनाब पार्क जहाज चौक में मिले, जिनको फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसपी मुल्तान जुबादा परवीन की अहकामात के मुताबिक और डीएसपी वहाड़ी मैडम नमरीन मुनीर पेट्रोलिंग पुलिस वहाड़ी की जानिब से जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी। वहाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम से नाजायज असलहा 1 अदद क्लाशनकोफ राइफल बरामद करके थाना शेख फाजिल में नाजायज असलहा का मुकदमा दर्ज कर लिया। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस वहाड़ी मैडम नमरीन मुनीर का कहना था कि जराइम पेश अफराद के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। साबिका हुकूमतों ने नंबरदारी सिस्टम को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया। मौजूद हुकूमत की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने नंबरदारों को जिम्मेदारियां देकर इज्जत दी। नंबरदार एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला चिन्योट के नए मुंतखब नंबरदार एसोसिएशन के अहदेदारों, जिनमें सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद अफजल शाह, चेयरमैन सरदार अब्बास हैदर, वाइस चेयरमैन सैयद नासिर अब्बास शाह, जिला सदर रियाज खान वलोर, जनरल सेक्रेटरी राय आयतुल्लाह रू भट्टी समेत नंबरदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर नंबरदार एसोसिएशन के अहदेदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिका हुकूमतों ने नंबरदार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया था। हम मौजूदा हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने नंबरदारी सिस्टम को फाल किया। डीपीओ चिन्योट सैयद हुसैन हैदर ने नंबरदारों के तमाम मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात को सुना और हल किया। कहरोड़ पक्का रोड दुनियापुर के करीब एपीवी वैन उलट गई। एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके मुतासरीन को गाड़ी से निकाला। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा गाड़ी का टायर फटने से पेश आया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जब छांव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो